Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel, and today we are going to talk about the Bitcoin. आपको ऑलरेडी पता ही है कि मार्केट इस वक्त अपने बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है, जो कि अच्छे तरीके से एक बहुत ही औसम तरीके से परफॉर्म कर रही है। और हम ऑलरेडी पीछे बात कर रहे थे कि इसी वीक में हम 100,000 को ऑलमोस्ट टच कर लेंगे, but that's the case. We already have touched around 99,000, I guess. Yeah, that is the price. Yeah, 99,000, around 98,800. So that was the price. That was the thing we were thinking as well. Maybe we will hit ultimately 100,000. It's another blow in the market if we will see in this week, because this is the last day in the week, of course, according to the working days. So let's see that what will happen, because I think we are gonna hit 100,000. It's not only 100,000. Maybe we will go to 106,000, and then we can talk about the next target as well. So if we talk about the supports and resistances, the levels which you want, we can tell you those levels from here. तो जितने भी हम बात करेंगे यहाँ पे, वो उन लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे। और मैं अगर आपको यहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊँ, तो उनके हिसाब से जो मुझे लग रहा है, मार्केट अभी शायद हमें थोड़ा सा इधर डिप ले 95,000 तक आए, 96,000, एंड देन we will see a bullish move hopefully if the support doesn't break. If we will talk about 15 minutes, it's already has hit 95,000, so 95,600. So अभी जो हमें लग रहा है आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो प्राइस हमें ऊपर ही जाती हुई नज़र आ रही है, जब तक कि इसके कोई भी पीछे वाला जो हायर लोज हैं वो उसको ब्रेक नहीं करता। तो अभी हम अगर इसमें 1 आवर की बात करें, तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो 93,000 का जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट 91,600। तो ये हमारे पास 93,200 एंड 91,600 ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं, जो कि मार्केट को आने वाले दिनों में अगर मार्केट गिरती है तो हमें वहाँ पे ये सपोर्ट दे सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारे पास आगे सपोर्ट लेवल्स आते रहेंगे, 89,000 एंड देन 86,000, 85,000, 86,000 अराउंड। तो ये वाले हमारे सपोर्ट लेवल जो हैं आपको नज़र आएंगे। और अगर यहाँ से आप चार्ट को भी देखें तो एक कॉन्स्टेंटली it is in a bullish trend and making higher lows. So you can see here it has made an higher low and then higher low and then this one higher low and then this one, this one, this one, this one. So it is showing that it is highly bullish at this time. So you should be very careful in your trades. Don't do any short trade right now. It is not advisable, and also I don't think it's gonna make sense right now. So what you have to do from here is you can take your stop loss, with very strict stop loss you can take some positions. But if you have already holdings, maybe you can wait for 106 and then we can talk about the next target. So let's talk about the next targets right now. 98,000 is already done, 98,800, it's almost 99,000, right? And now we will be talking about 100,000, what people are thinking, and if it is gonna happen or not. So if we will talk about daily, then we have to use the Fibonacci expansion from here. So if we will use that from here till here, sorry, and then till here, so we can see that 107,000 we have this prediction that it can hit around 107,000. So that is the target. There is 107,000, that is the target from here. And then we can talk about actually we didn't add the other targets in the Fibonacci expansion. So these are the targets. You can take you can have your trades until 107. Of course there would be massive buying. अगर मैं आपको बाइंग की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास आने वाले दिनों में मैसिव बाइंग आने वाली है।
वो कहाँ पे, वो वहाँ पे जहाँ पे मार्केट 100,000 को टच करेगी तो वहाँ पे मैसिंग बाइंग पड़ी हुई है, क्योंकि हर बंदा 100,000 का सोच रहा है और उसके बाद एक अच्छी बाइंग आएगी मार्केट में, काफ़ी मोमेंटम आ सकता है आने वाले दिनों में। तो उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज करके चलें। आपके पास एक ऑप्शंस होंगी अच्छे वाली जहाँ पे आपको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं अभी भी, और इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं विद द टाइम। एंड नाउ वी कैन टॉक अबाउट एथेरियम अ लिटिल बिट। आई गेस सम पीपल विल बी इंटरेस्टेड अबाउट इट एज वेल। तो हमारे पास एथेरियम ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि 3220 की एक इसको रेजिस्टेंस है, वहाँ से जब भी निकलेगा तो उसको पहले तो 3150 की हमने रेजिस्टेंस बताई थी, वो लेवल जैसे ही निकलेगा तो हमें एक ही रेजिस्टेंस लेवल था वो 3220 का था, जो कि उसने बिल्कुल भी उसका कोई आई गेस केयर नहीं किया उसके बारे में। और इस बार तो पहले वो वहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट लेता रहा है, लेकिन वापस आके उसने उस लेवल को टच डाउन किया है। अगर आप इस लेवल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट ने जहाँ पे इसके रेजिस्टेंस लेवल थे, ये हाई है पीछे वाला और उसके बाद लोज और ये हाइज, यहाँ पे आके मार्केट ने एक बार उसको रीटेस्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है हमारी मार्केट में। हमारे लिए भी आने वाले दिनों में हमें ये सपोर्ट लेवल एक मिला है जो कि अराउंड कहाँ पे है 3280 के करीब हमारे पास ये भी एक सपोर्ट लेवल बन गया है, लेकिन हम इसको अब ऊपर की तरफ भी दे सकते हैं आने वाले दिनों में। 3440 का लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो उसके बाद हम एक अच्छी मूव देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये है आपके पास 3440, तो यहाँ पे ही मार्केट जो है वो आपको एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे दे सकती है। आने वाले दिनों में आपके पास और भी बाइंग पोजीशंस आएंगी और मार्केट शायद बुलिश हमें नज़र आए अगर ये लेवल जो है 3440 का लेवल ब्रेक होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग के लिए। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज हो गई है 3200 सॉरी यस 3300 समथिंग। तो ये लेवल के ऊपर जैसे क्लोज हुई है तो हमारे पास आने वाले दिनों में ये अच्छे लेवल्स हैं, मार्केट बुलिश हमें नज़र आ रही है। एथेरियम बहुत लोगों को परेशान किया हुआ था क्योंकि जिनकी भी इन्वेस्टमेंट एथेरियम में थी, क्रिप्टो मार्केट मार रही थी और वो एक अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बुलिश ट्रेंड थे, ह्यूज बुलिश ट्रेंड थे, लेकिन एथेरियम स्टक था पहले यहाँ पे इस रीजन में स्टक रहा। हम लोगों ने आपको बताया कि जैसे ये 2700 के 2700 के लेवल से ऊपर निकलेगा तो आपको ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। और अभी भी यहाँ पे भी हमने आपको बताया कि जैसे ही 3220 के रीजन से ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये ऑलरेडी एक बार टच करके जा चुका है 3260 के लेवल को, और अगर यहाँ से दोबारा ये टच करके अपनी सपोर्ट लेके उठता है तो फिर शायद हमें आने वाले दिनों में दूसरे भी टारगेट्स मिल सकते हैं। उन टारगेट्स को देखने के लिए हम इधर आ जाते हैं अपने जो डेली चार्ट पे। तो हमारे पास जो टारगेट लेवल्स हैं नेक्स्ट, वो पहले तो आपको सपोर्ट बता दूँ कि हमारे पास जो अभी भी सपोर्ट्स हैं जो हमारे पास अभी भी स्पोर्ट्स हैं वो हैं 3220 की और उसके बाद 2826 की, ये वो स्पोर्ट्स हैं जो कि मेजर स्पोर्ट्स हैं हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास 3260 की एक्सपोर्ट है जहाँ से मार्केट अपना दोबारा रिवर्सल ले सकती है बुलिश साइड पे निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को अपना हाई क्रॉस करने के लिए उसको एक्सपोर्ट चाहिए और एक मोमेंटम चाहिए, जो कि आने वाले दिन में अगर हमें मिलता है, इस वीक में भी शायद हम 3550 का लेवल देख सकते हैं अगर इसको सपोर्ट लेवल मिलता है। अगर ये 3550 का लेवल क्रॉस करती है देन वी कैन सी इट अराउंड 3850। तो ये हमारे पास है लेवल्स थे। आपको ऑलरेडी मार्केट के बारे में हमने बता दिया, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी और आई होप कि यू पीपल विल एंजॉय। हमारे पास डिस्कशंस के लिए भी आने वाले दिनों में हम
डिस्कशन के लिए भी वीडियो करेंगे और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, मार्केट को डिस्कस करेंगे, लंबी वीडियोस करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे बिल्ड करने हैं वो भी आपको बताएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ हम लाइव सेशंस पे आएँ, क्योंकि हमने चैनल अपना बिल्कुल न्यू जो है वो स्टार्ट किया है। तो आपको जो एडवाइस की जाती है वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें तो हम ऑनलाइन आ सकें लाइव। तो लाइव सेशन में हम आपको टेक्निकल के बारे में बताएंगे, मार्केट टेक्निकली कैसे परफॉर्म करती है, कौन कौन से टेक्निकल कहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, इट इज़ मोर देन इनफ आई गेस, इट्स आल्सो ऑलरेडी 10 minutes video, so hopefully we will see you in the next video. Thank you, take care.